Guys, very good morning. So guys, today you are all assembled over here because you are qualified, I believe, with a very good percentage, and few selected students from the Vidarbha are called over here. And this session is being conducted simultaneously today at Nagpur, Amravati, Yavatmal and Chandrapur, and wherein all the top students of the region are coming at one place and enjoying this LEAP workshop as such. Okay, I am here today to enlighten you about the ICAD Foundation program. So this may be the session of 30 minutes or so, okay, but this is one of the most important session of today. So what exactly we are covering in the session today? This is the most important part of your life now. Build your foundation. Build your foundation now. And I am Sarang Upaganlar, CEO and founder of ICAD, who is delivering this session. So guys, before coming down to this session, let's come down to the very short story. Just now, I have visited Vietnam with some of the family members, and there is one kid. She's in 8th standard right now, and she's very adamant. यंग जनरेशन तो एडमेंट होती है, उनको लगता है कि हर जनरेशन पिछले जनरेशन से ज़्यादा टैलेंटेड होती है। अब वो टैलेंट डेवलप करने के लिए वो एडमेंट हो जाते हैं। थ्रू आउट द टूर वी आर जस्ट कन्विंसिंग हर कि बस अभी अपन फोटो निकाल रहे थे गॉगल पहन। And she was adamant, I will not going to wear the goggle. It took us 7 days. उसको दिखाना पड़ा कि पहले पिक्चर कैसे है, गॉगल पहनने के बाद पिक्चर कैसे है, और 7 डेज में आखिरी में वो जाके कन्विंस हुई, यस ओके ठीक है मैं गॉगल पहनूँ। आखिरी में जाते जाते मैंने उसको यही बोला, आप आगे की जनरेशन टैलेंटेड हो, हमसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने वाली हो, वो ही नहीं हो, आप प्रोसेस में हो। सालों से हम जो सीखते हैं वो एक झटके में 1 मिनट में आपको बता देते हैं भैया, ताकि आप सालों ना लगा वो सीखने में। आपका काम है फटाफट एक्सेप्ट करना। अगर आपको हमको गाइड करना है तो 10 साल बाद करो, तब तक शायद तुमको हमारे से ज़्यादा नॉलेज आ चुका होगा। नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग वॉट एवर वी आर टेलिंग हर। सेशन का यही है आज के सेशन में कुछ बताए जाएंगे, और अपनी एक रिबेलियस टेंडेंसी होती है, भैया ऐसा नहीं ऐसा, प्रोटोकॉल्स है, फिक्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं। भैया टॉप रैंकर्स निकाल चुके ये प्रोटोकॉल्स, प्रूवन सिस्टम है। आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है, फटाफट एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। जैसा एक पैराशूट है, अगर वो ओपन ही नहीं होगा तो गिर जाऊंगा ना, तो आपका दिमाग ओपन रखो आज। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग डाउन टू द टुडे सेशन. Before start of the session, I am just playing you one video that is enlightening you the history of foundation program in Nagpur and at ICAD. And ICAD is the pioneer of the foundation program in this region. So you will understand what exactly the Nagpur was, exactly the Nagpur is, and what exactly the Nagpur is going to be. Okay, so let's see the video. So guys, you are seeing the results of ICAD Foundation Training Program in every domain. And which are the domains? भाई 10वीं में 90% एंड अबव लेने के लिए हम इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। It is we are seeing the
international Olympiad, results in international Olympiad. We have seen the results in the national Olympiad. We have seen the top ranks of the JEE Advanced as well as the JEE Mains that are created. Okay, we have seen the top rankers of NEET. We have seen the top rankers of CET, and lastly, we have also seen the top rankers of board. And all are created in the same program. Okay, now we are supposed to see how such results are created, first thing. And secondly, what exactly the basic purpose of ICAT Foundation program. First purpose, is ICAT running the foundation program just for the board percentage? You get 90% above, 95% above, 98% above, even 100%. Obviously no. Primary target is to develop the competitive orientation and competitive excellence. और ये लड़के तो अपने आप 90% एंड अबव रहते, हर कोई 90% एंड अबव रहेगा जो भी कोऑपरेटिव स्टूडेंट रहेगा ICAT फाउंडेशन प्रोग्राम में. Second, competitive orientation, is it the purpose? Yes. Competitive excellence, is it the purpose? Yes. Creation of confident guy who will easily crack JEE and NEET, is it the purpose? Then obviously yes. Then creation of hardworking and study oriented ICADian, is it the purpose? Yes. Inculcation of techniques that are required to crack the competitive examination, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, 2-2, 3-3 साल लगते हैं. Is it the purpose? Yes. Inculcation of study habits. आज हम 2 घंटे के ऊपर स्टडी टेबल पे नहीं बैठ सकते, टाइम भी नहीं है अपने पास. 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठना. Is it the purpose? Yes. These are all the purposes of the foundation training program. अगर ये अचीव हो जाते हैं तो सब एग्जामिनेशन आप एक्सेल करोगे, ये बोर्ड हो या जेई हो या नीट हो या ओलंपियाड्स हो. लास्टली, इतना बड़ा करना है और इजीली करना है. इज इट द पर्पस? देन यस. सो दीज आर ऑल द पर्पस ऑफ फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम that ICAT wants to achieve, and we are successful in achieving that. Now guys, coming down to the some basic questions, right, that I am going to ask you and you are supposed to answer it. The very first question that is coming up for you: are you confident of getting 90% and above in your board examination? How many of you are confident of getting 90% of and above in your school examination and board examination? 8, 9, 10. Just raise your hands. Perfect. और जिनके हाथ खाली थे ना उनको भी मत बता दूं कि अगर आप 90% लेना चाहते हो तो ले सकते हैं. अभी इसमें से कौन बंदा है जो 95% एंड अबव ले सकता है या लेने का टारगेट रख रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स. Okay, that's fine. Now my second question that is coming to you: suppose we get 100% in boards or your schools, will you be confident of securing top score, top ranks in JEE Advanced and NEET? You are saying that I am the board topper, I am this topper, so I will be the topper of JEE or NEET, right? Is it so? How many of, okay, just tell me your answer. Is it so? Yes or no? That you are getting good percentages in school and board, you will crack competitive examination? Obviously no. Right? Why? Because JEE and NEET, they are the competitive examination. They are absolutely different from the board. They need the different kind of approach. Whatever the approach we are developing, मैं बैडमिंटन खेला हूँ, मैं क्रिकेट में अपनी स्किल दिखा रहा हूँ, it is not going to match. मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उधर बैटिंग के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग सेइंग दैट कि मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ तो मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, ये नहीं होने वाला. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको मालूम है सॉल्यूशन. यू आर इंटेलिजेंट इनफ फॉर दैट. आई एम कमिंग डाउन टू द सम मोर बेसिक क्वेश्चंस.
Okay? Yes. Now we are coming down to the some other basic questions. Okay? Now read these first two questions very carefully. First, is growth possible in comfort zone? Just tell me yes or no. Is growth possible in comfort zone? Obviously no. Right? So you accept that, right? Growth is not possible in comfort zone. Perfect. ध्यान में रखना, अगले क्वेश्चंस आ रहे हैं. So you are saying that the growth is not possible in comfort zone. First, what is your comfort zone today? Should I tell you what your comfort zone today? If any student sitting over here is scoring 70% in his school examination, then that is his comfort zone. His or her comfort zone. वो हर टेस्ट में जाएगा और उतने ही मार्क लाएगा और उसको लगेगा कि जो 80% वाला है, 90% वाला है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो मेरे से होने वाला नहीं है. And he is throughout his 10 years he is playing in that comfort zone. But what is the uncomfortable zone for him? His uncomfortable zone is भाई 80% लाना है तेरे को अभी. Now uncomfortable starts. अब जो भी बैड हैबिट्स होंगी, थोड़ा सा वीडियो गेम बाजू में रखेगा, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा, एंड नंबर ऑफ थिंग्स वो शुरू करेगा. यानी अभी स्टडी टेबल पे ज़्यादा बैठ रहा है. इट इज़ अनकम्फर्टेबल जोन क्योंकि उसका हैबिट नहीं है. एक बार 80% उसका आना शुरू हो गया, ही इज़ गेटिंग कंफर्टेबल ओवर देयर, दैट बिकम्स हिज कंफर्टेबल जोन. एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ इट, वो हमेशा वो कंफर्ट जोन में ही रहेगा. लेकिन वी आर सपोज टू कॉन्स्टेंटली चेंज अवर कंफर्ट जोन. तो अभी नेक्स्ट क्या है? by 90%. Again the uncomfortable starts. Again now it is the uncomfortable zone, and again he is striving hard, he is making correction in his habits, in his studies. वो अब सुनने लगता है, जो भी उसको टीचर्स बता रहे हैं वो सुनने लगता है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, और कभी ना कभी वो 90% एंड अबव पहुंच गया. Now 90% became his comfort zone, क्योंकि अभी हैबिट डेवलप हो चुकी है और वो 90% लाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो फिर से स्विच ना कर दे अपने बैड हैबिट्स की तरफ. Now why not 95%? That is again uncomfortable zone. And if you achieve that, why not 100%? And this is the highest uncomfortable zone. But now stop. कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन चेंज करते करते बहुत अच्छे अचीव तो कर दिए, लेकिन ये अनकंफर्टेबल जोन भी, यहाँ भी कहाँ स्टॉप करना, ये भी तो हमको आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ICAT's first top 100 ranker, All India 91, IIT Delhi Computer Science, now working with Facebook, right? And he is head of the camera division of the Facebook. गूगल में सर्च कर लेना ईशान खोत, तो यू विल सी हिज इंटरव्यू विथ CEO of Facebook. Now, what exactly he scored is 94% in his 10th standard, यानी he stopped over there. Then which uncomfortable zone he got into? He got into the ICAT Foundation training program. He got into the training of the mathematics Olympiads. He qualified the Indian National Mathematics Olympiad. जब ये ध्यान में आ गया कि भैया केमिस्ट्री उसका वीक जा रहा है, तो उसने ही क्वालिफाइड द इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड आल्सो. He got All India rank 91, but he changed his comfort zone from school percentage, and he got into the discomfort zone of the competitive examination of JEE Advanced or Olympiads. Abhinav Tamaskar, what is his 10%? 88%. Qualified Indian National Mathematics Olympiad, was the top ranker of JEE Advanced Indian National Mathematics Olympiad. That means you are among the top 30 students of India in mathematics. He is also working with the top company in New York.
he has also changed his comfort zone from school to competitive exams. Okay, suppose now your foundation journey starts. So you are now competing for school examination as well as your competitive examinations, right? So you will make your humble beginning in the competitive examination zone, maybe with 30% or 40%. That's all. तो यहाँ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, 80% एंड अबव तो ऑल इंडिया के टॉप रैंकर्स रहते हैं. तो यू विल स्टार्ट योर हम्बल बिगिनिंग मे बी 30% और सो ऑन, and then you start preparing. Then your 30% is your comfort zone. You change your comfort zone and get into the 40%. You again change your comfort zone, get into the 50%. लेकिन चेंज कितने लोग करते हैं? तो शुरू अगर इतने लोग होते हैं तो फिर जैसे 40% आ जाते हैं तो थोड़े इतने रह जाते हैं, 50% एंड अबव इतने रह जाते हैं, 50 to 60% इतने रह जाते हैं, 70% एंड अबव बहुत ही फ्यू स्टैंडर्ड्स रह जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कंफर्टेबल जोन चेंज करना है आपको. कॉन्स्टेंटली आपको डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है, बहुत ही छोटे रह जाते हैं. और जिसको 80% तो फिर तो 2-4 ही रह जाते हैं. और यही तो 2-4 लोग हैं जो टॉप 100 और टॉप 500 में आते हैं, जेई के या नीट की रैंकिंग के. सो द गाइस, ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल इन कंफर्ट जोन, ये आपने बोला. अब मैं बोलता हूँ, सब ज़रा ध्यान से सुनना कि आपके कंफर्ट जोन हमेशा आपको चेंज करते रहने पड़ेंगे. आज कहीं भी कंफर्टेबल हो गए तो समझ लो आप ख़त्म हो गए, आप वही रह जाओगे. भले ही करोड़ों लोग हैं, वो लोग हैं दुनिया की, उनके आप ऊपर रहोगे, नो डाउट ओवर देयर. लेकिन अगर एक्सेल करना है, टॉप 100 में जाना है, टॉप 1000 में जाना है, टॉप 2000 में जाना है, आपको आपके कंफर्ट जोन चेंज करते रहने पड़ेंगे. कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. What problem you will face if you try to change your comfort zone? सबसे पहला प्रॉब्लम, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जाता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनका सबसे पहला ये प्रॉब्लम होता है, तो मैं अभी क्लास में ये रैंक मेंटेन कर रहा हूँ, वो मेरा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से मेरा रेपुटेशन बना है, उसी से मेरा प्रेस्टीज बना है. पूरा क्लास, मेरा पूरा स्कूल मेरे को उसी के कारण जानता है. और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा रेपुटेशन जाएगा. ये सबसे बड़ा फियर उसमें रहता है. बट आर यू रियली गोइंग टू डू बैड इन योर बोर्ड? जितने भी बच्चे हैं फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के, जब वो फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उनको क्या दिखता है? उनको स्कूल में पढ़ाई एकदम ईजी लगने लगती है. 10वीं की पढ़ाई उन्होंने 10वीं के दिसंबर तक भी नहीं किया, जनवरी में हाथ लगा दिया तो 1.5 महीने वो 95% अनुभव लेते थे. एंड दे ऑल, इफ दे वांट, they all can stood the top rankers of the board. So maybe it is the Rupanshu Ganveer, maybe it is the Anurag Bhardwaj who top Maharashtra State Board. That too in 12th. So Anurag was the first ranker of board throughout Maharashtra in open category, and Rupanshu was the first ranker of board in Maharashtra in the reserve category. Samir Pandey 98%, easy है, that is not a big deal as such. You are not going to lose that. It is going to help you, it is going to make your board or school studies very easy. सब इजी लगने लगेगा, सब इजी लगेंगे. आप जाओगे कहाँ, आपको गलत कहोगे आप, और कॉन्फिडेंस में आओगे. आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है यार, एंड यू विल मेक द रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स लाइक अरे बहुत ही पांचट है यार. नो, you have to score that, you have to respect whatever the board system is, and you have to comply with that. You will see that everybody will cross 95%. Next question is, if you really do good without any touch of competitive examination preparation, are you going to sustain the future competition?
चलो भैया मैंने 99% ला लिया, पूरे नागपुर में मेरे फोटो आ गए, सब पेपर में मेरे फोटो आ गए, सब मिठाइयाँ बढ़ गई, सब हो गया. Is it going to help me? Now I'm supposed to face the competitive examination in 11th and 12th. अभी पहले तो हमको बहुत कन्विंस करना पड़ता, अभी कन्विंस नहीं करना पड़ता, सबको समझ गया है. लेकिन छोटी सी हिस्ट्री से देख लेते. These are the 3 stories. हर्षद, ही इज द 10 बोर्ड का विदर्भ का फर्स्ट रैंकर. आईकैड ने आईकैड शुरू किया 2004 में. आईकैड ने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ली, आईकैड ने वीटीएस विदर्भ टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ली, आईकैड ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन ली, सीपीए. ओके, और इसके बाद एडमिशन ले लिया, एडमिशन बैचेस भी शुरू होने वाले हैं. तब बोर्ड का रिजल्ट आता है जून में, एंड फाइंड दैट कि हर्षल इज द फर्स्ट टॉपर ऑफ विदर्भ. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से हमारे गुड विशेष चले गए, और हमको ये मैसेज आया कि सर बोले पूरे कोचिंग क्लास वाले मेरे घर आके गए, आपके तरफ से कोई नहीं आया. द वेरी फर्स्ट थिंग वी नो दैट कि जिसका कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन है, दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू एक्सेल इन जेई और नीट. It is not the board orientation we were looking for. They realized their mistake after 2 years when he couldn't do well in JEE. We are having the नेहा फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की स्टूडेंट थी. पहले 2008 के आसपास आईकैड ने 10वीं का फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट थे, उसमें नेहा भी थी. सीबीएसई स्कूल की बच्ची. उसका टारगेट, उसके मम्मी का टारगेट एक ही था कि भैया मेरे को बोर्ड के टॉपर आना है. सो एज सुन एज शी फाउंड दैट कि बोर्ड का टॉपर आना आईकैड के पढ़ाई के साथ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सो स्विच्ड ओवर कंप्लीटली टू द बोर्ड एंड लेफ्ट आईकैड फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट दैट टाइम. उसी में ईशान खोत भी था, उसी में तनय जैन भी था, उसी में अभिनव तामस्कर भी था, जो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई करके जेई के टॉप रैंक्स आए, आईआईटीज में पहुंच गए, आईएससी में पहुंच गए. शी लेफ्ट दैट, शी टॉप्ड सीबीएसई. व्हाट नेक्स्ट? आफ्टर 2 years when JEE advanced result was there, she was nowhere. Coming down to the third story, Ketki is another ICAD Foundation student who concentrated on 10th, on state board. She got with her first rank. थोड़ा सा सर्च करोगे तो ध्यान में आ जाएगा, उसकी सब तरफ वीडियोस दिखेंगे, यूसीएन के इंटरव्यूज दिखेंगे, लेकिन वो कहीं भी जेई या नीट के टॉप रैंकर्स में आपको नहीं दिखेगी. Point is, your uncomfortable zone has to switch at one point to only to the competitive examination. Getting 95% is not a big task. और कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं. मेरे को 95% मिलेगा, 99% मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम रेपुटेशन की सोचते हैं, हम इसकी सोच, लेकिन ये हम नहीं सोचते नुकसान कितना कर रहे हैं. सो गाइज, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. Uncomfortable zone, you are supposed to constantly change your comfort zone constantly and get into the uncomfortable zone, make it comfortable, again get into the uncomfortable, make it शायद ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, लेकिन शायद आदत भी पड़ जाएगी. सो इट डिपेंड्स. लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये अनकंफर्टेबल जोन में आए नहीं कॉम्पिटिटिव में, और वहाँ अगर टॉप भी कर दिए स्कूल में, और जब वो एंट्रेंस देते हैं आईकैड की, जेई की, नीट की, जब वो एंट्रेंस देते हैं तो हर फाउंडेशन बच्चे के नीचे उनका स्कोर रहता है 30%, 40%. भाई हमारे बच्चे तो 50% आना बोल लेके जा रहे हैं. कितना बड़ा नुकसान है. सर बोलते सब ढूंढ रहे हैं टैलेंटेड बच्चों को स्कूल्स में, कौन टैलेंटेड है, हम उसको टॉप रैंक में, कुछ नहीं ज़रूरत है हमको.
हमारे फाउंडेशन के बच्चे टॉप रैंक्स लाएंगे, उनके सामने तो कोई टिकने वाला नहीं है वैसे। नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक्स। दिस इज one of the most important slide. So guys, now we are coming down to the one of the most important slides, right? Understand the basics now. Basics समझ में आ गया तो डिसीजन अपने आप प्रॉपरली लोगे। What exactly is required? What exactly the skill sets that are required to crack the competitive examination? सबसे पहले टेक्निक्स। ये टेक्निक्स है ना, इट इज वाइडली यूज वर्ड बट वेरी रेयरली प्रैक्टिस्ड। अरे क्या टेक्निक्स है भाई? मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मैं बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भैया किसी ने ये बताया आखिरी में मुझे, अरे कुछ नहीं करना पड़ता। 6 टाइप के शॉट्स रहते कन्वेंशनल, 6 टाइप के शॉट्स होते हैं अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मीन्स अगर धोनी का छक्का है तो वो अनकन्वेंशनल शॉट्स। ओके, ये 12 टाइप के शॉट, हर टाइप के शॉट को किसी ने 1500 बार प्रैक्टिस कर लिया तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन बनता है। इतने कोचिंग कैंप्स अटेंड किए होंगे, किसी ने इतने तो इसके तरफ ध्यान दिया, बेसिक के तरफ। अभी बहुत अच्छे प्रोफेशनल एकेडमिक्स नागपुर में एकेडमीज आ रहे हैं नागपुर में, तो ऑब्वियसली दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट बेसिक्स। लेकिन हमारे वक्त तो कुछ था ही नहीं। और ये बेसिक्स नहीं है, हम जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनने, पॉसिबल ही नहीं है। बैडमिंटन मैं जा रहा प्रैक्टिस करने के लिए, अरे भैया लेकिन जो बैडमिंटन की स्किल्स लगती है, जो प्रैक्टिस लगती है, जो टेक्निक्स लगती है, अपने यहाँ का एक टॉप बच्चा जिसने कभी कादम्बी श्रीकांत को भी हराया, जब वो 10वीं के बाद बेंगलोर गया ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उसको उन्होंने बोला भाई तुम्हारे टेक्निक्स गलत है, आपको अंडू करना पड़ेगा। जो गलत टेक्निक सीखे है उसको अंडू करना पड़ेगा और नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निक्स एंड हाउ मेनी क्लासेस कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेक्निक्स, हाउ टू स्टडी करंट टॉपिक, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग, एग्जामिनेशन टेक्निक, हाउ टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। नेगेटिव कम से कम कैसे होना चाहिए, 0 कैसे होना चाहिए। सर सिली मिस्टेक हो गया, अरे भैया सिली मिस्टेक हो गया तो भी उसको सिली मिस्टेक 0 करने की टेक्निक्स है ना, वो फॉलो कर रहे हैं क्या? हु इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट? सो दीज स्किल सेट यू आर सपोज टू डेवलप, टेक्निक्स यू आर सपोज टू डेवलप। सेकंड डिसिप्लिन, विल पावर की बात करते। विल पावर यानी क्या होता है भैया? सुबह मैं 5 बजे उठा, मैंने अपना मेडिटेशन निपटाऊंगा, थोड़ा सा वॉक निपटाऊंगा, मैं अपने वर्किंग के लिए बैठा और मैंने 7-8 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपना सॉल्विंग प्रोग्राम ख़त्म किया। दूसरे दिन मैंने वही किया, तीसरे दिन मैंने वही किया, चौथे दिन मैंने किया। इसको बोलते विल पावर, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। यही तो बंदे सक्सेसफुल होते हैं। वो क्या एक दिन में डेवलप होने वाला है? हार्ड वर्क, सॉल्विंग एबिलिटी। पहले 2 घंटे डेस्क पे बैठना नहीं होगा और बाद में 10-10 घंटे बैठोगे, उठेंगे नहीं। कंसिस्टेंसी, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया और कर रहा हूँ हर दिन। दिस इज द कंसिस्टेंसी। एक्सपोजर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, वही बोरिंग चीज़ बार बार वही करना। भैया कंफर्ट जोन चेंज करेंगे, डिस्कम्फर्ट जोन में जाएंगे। ये इजी लग रहा है, चलो भैया अभी एडवांस क्वेश्चन को डाल, अभी स्टेप 4 इजी लग रहा है, स्टेप 5 पे जाएंगे, स्टेप 5 इजी लग गया, चलो स्टेप 6 पे जाएंगे। एक्सपोजर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डू। हम सब चीज़ एक ही दिन में करना चाहते हैं, हम नॉलेज भी तभी लेना चाहते हैं, स्किल सेट भी तभी। ऐसा नहीं होता। हर बंदे का टारगेट है भैया अभी नहीं, अभी अपने बच्चे को प्रेशर नहीं देंगे, 10वीं का दें। 10वीं के बाद तूने इतना बड़ा प्रेशर एक साथ दे दिया ना, उससे अच्छा थोड़ा थोड़ा देता। अरे 10वीं के बाद तो हमारे बच्चे एकदम इजी रहते, सब कुछ हो चुका है भाई, हमको हमारे पूरे टेक्निक्स आ चुके हैं, हम तो बस उनका तो काम इजी हो गया 11th-12th में। 11th कंप्लीट होते होते तो उनके पोर्शन भी खत्म हो गए हैं, तो रिवाइज ही कर रहे हो, टेस्टिंग ही दे रहे हैं, उनका काम तो इजी हो गया। और तुमने क्या किया भैया, अपने बच्चों को परेशान नहीं करना। भैया बच्चों को अगर तुम डालोगे नहीं, बच्चे खुद अपने को डिस्कम्फर्ट जोन में डालेंगे नहीं तो बनेंगे वैसे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जितने स्किल सेट अगर अपन ने आज अभी डिस्कस किए, क्या ये स्किल सेट अपने इंस्टेंटली डेवलप हो सकती है? ट्राई करके देखो ना। मैं चाहता हूँ एक्यूरेसी, मैं आपको टेक्निक बताऊँ एक्यूरेसी की।
अगर आपने स्कूल का या कोई भी लो, अगर आपने अभी 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको अगर उसमें से 30 आते हैं तो 30 में से 30 राइट होने चाहिए, एक भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बच्चे तो 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेई में विदाउट एनी सिली मिस्टेक, 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नीट में विदाउट एनी सिली मिस्टेक। तो मैं तो आपको 30 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूँ। 30 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आप बोलोगे हर बार कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो रही, ठीक है ना, हो रही ना। अब चलो अगले 5 दिनों में ऐसा होना चाहिए कि एक भी सिली मिस्टेक ना हो। ऐसा होने वाला है क्या? अरे 2 महीने की प्रैक्टिस लगेगी तुमको, तब कहीं जाके 0 पे आओगे। तो फिर क्या एक ही टेक्निक है क्या? 5-5 6-6 टेक्निक्स है जो हमको इम्प्रूव करनी है। टाइम बाउंड स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है, रोज डिसिप्लिन की आदत डालनी है, 3 घंटे रिवीजन की प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है, स्कीपिंग कैसे करना है ये सीखना है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मैं बोलता अभी कुछ नहीं देखूंगा, 11th में देखूंगा। 11th में क्या होता है, इतना बड़ा पोर्शन भी स्टडी का आ गया, टेक्निक भी डेवलप करने की है, डिसिप्लिन भी डेवलप करना है, स्टडी टेबल पे भी बैठना नहीं होता, रोज के रोज काम नहीं होता, विल पावर ही नहीं है, दुनिया भर की ये चीज़ें एक साथ। Should we start now preparing for JEE and NET without this developing this skill set? I think you got the importance of the foundation training program. Reality is now foundation training program are the only toppers. They are far ahead of the other people. Reality is जो बंदा ये सोचता है 10वीं के बाद देखेंगे, अभी प्रेशर नहीं लेता है, उनको जब एंट्रेंस देते हैं ना तब ध्यान में आ जाता है वो कहाँ रह गए। जब वो क्लासेस शुरू करते हैं ना तब उनको ध्यान में आ जाता है कि बस पहले महीने में क्लासेस के पहले 7वें दिन में उनको ध्यान में आ जाता है कि कितना कर सकते थे और कुछ किया नहीं। ठीक है, अभी लिमिटेड रिसोर्स में हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए, लेकिन जो हाइट वो पहुंचना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि डिस्पोर्ट कंफर्ट जोन ये सब आदत ही नहीं है ना कंफर्ट जोन चेंज करने की आदत है, ना स्किल सेट डेवलप कर लिए, ना एबिलिटीज डेवलप किए। ओके, so this is the basics. I think you understood why exactly the foundation is needed. And coming down to the very important thing, how I get prepares. भाई मेरे को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है मेरे पास और मैं एकदम टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो कभी भी ग्रेजुअल होना पड़ता है। मैंने सोच लिया चलो मैं मैराथन रनिंग करूंगा, मैं 44 किलोमीटर का मैराथन रनिंग करूंगा। ओके, और मैं खुद ही शुरू करता हूं, भाई गलत कर रहा है, कभी नहीं कर पाएंगे ढंग से। देयर हैज टू बी ट्रेनिंग। अभी नागपुर में फॉर्चुनेटली पिछले 7-8 साल से 2 बड़े ट्रेनिंग क्लब्स खुल गए हैं और कितना सुंदर ट्रेनिंग कराते हैं। वो हिली रीजन में ट्रेनिंग कराएंगे, तुमको एक्सरसाइजेस कराएंगे, वार्म अप्स कराएंगे, तुम्हारा प्रोसेस एकदम इजी कर डालेंगे। जैसे मैं गया ट्रेनिंग के लिए और मैं 10वें दिन में 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ लिया। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग, कि भैया वो जिसको कुछ भी नहीं है बेसिक, उसको प्रॉपरली ऊपर तक लेके जाए। और किसने खुद का दिमाग लगाना शुरू किया, सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। सो लेट्स गो स्लोली एंड स्टडीली। स्टेप 1 क्या करते हैं? कुछ नहीं भाई, सिंपल जर्नी स्कूल करिकुलम से स्टार्ट करते हैं। पहले वहाँ डिसिप्लिन लाते हैं, सिंप्लीफाइड टेस्ट, सिंप्लीफाइड डिजिटल क्लासेस, असाइनमेंट, सॉल्विंग, सब इसमें रहता है। फिर दूसरा, और फिर फाउंडेशन का टच हफ्ते में 3 क्लासेस होती है उसकी, वो क्लासेस और सॉल्विंग देना शुरू करते, टेस्ट देना शुरू करते। और जैसे ही ये 2 स्टेप कंपल्सरीली हर बंदा करता है, यानी क्या होगा, जब तक वो 10वीं क्लियर होगा, स्कूल एकदम मास्टरी पे रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ओरिएंटेशन एक्सलेंस आ चुका रहेगा। उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को उसको डर नहीं लगेगा, भले वो ट्रैक इट। और जो टेक्निक्स वगैरह डेवलप करनी है वो भी हो चुकी रहेंगी। अब इन्होंने बहुत सारे कंफर्ट जोन क्रॉस किए।
वो शायद 70 से 80% पहुँचे, 80 से 90% पहुँचे, 90 से 95% पहुँचे, कहीं ना कहीं फाउंडेशन में 40 से 50%, 60% पहुँच चुके हैं। कुछ लड़के और आगे हैं जो 80% और 90% अबव जा रहे हैं। अब भैया आ जाओ, बिकॉज दीज आर द पीपल नाउ जिनको स्टेप 3 में जाना है, ओके, एंड दे विल बी ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द हायर लेवल प्रोग्राम। अपन डायरेक्टली हायर लेवल प्रोग्राम दे देंगे तो भैया एकदम डाइजेस्ट नहीं होंगे, बच्चे ड्रॉप आउट ही हो जाएगा। एंड नाउ दे आर शिफ्टेड बिकॉज दे हैव डेवलप देयर डिसिप्लिन, दे हैव डेवलप द हैबिट ऑफ चेंजिंग द कंफर्ट जोन, ओके, they have developed the penchant for studies. Now they are now trained for Olympiads, JEE and NEET right from their school days. So this is the step, this is the way ICAT develops. और इसकी खासियत ये है कि हर बच्चा होशियार है, टैलेंटेड, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट और टॉप 100 में, टॉप 1000 में, टॉप 500 में चले जाएंगे। बाकी बच्चे भी JEE नीट्स हर एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन वो दे रहे, प्रॉपरली क्रैक करके अच्छे कॉलेजेस पे पहुंचने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द स्टेप 1 स्कूल कुरिकुलम। ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है स्कूल। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँ पापा इतना बड़ा बुक है और अभी शायद इसकी ट्यूशन लगानी पड़ेगी, मैथमेटिक्स का बुक, मतलब बेटा एक काम कर, चलो गिनो, पूरे क्वेश्चन गिनो कितने टोटल। सिर्फ बड़ा बुक देख के मैं क्या एकदम डिसीजन लूँ क्या? टोटल गिने 1500 क्वेश्चन। अपन पर डे कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? 20। तो ठीक है, बताओ भी अभी 1500 क्वेश्चन कितने दिन में कंप्लीट होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, 50 दिन। अगर तू 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करता है तो भाई 40-50 दिन में तो पूरा स्कूल कंप्लीट हो रहा है अंदर। तब रियलाइजेशन होता है ये तो कुछ भी नहीं है। 10 दिन भी करता, 10 क्वेश्चन भी पर डे करता तो भी कितना हो रहा है? 2 महीने में कंप्लीट। इजी है, इजी है, एंड वी मेक इट फर्दर इजी। Simple board defined curriculum for each class of 8th, 9th, 10th, right, in subjects, in all the core subjects. Maybe if your science, your social science, your English, mathematics, experienced faculty. ये बहुत ही क्लिक वर्ड है, कैसा वर्ड है, एकदम कॉमन वर्ड है, एक्सपीरियंस फैकल्टी। एक्सपीरियंस फैकल्टी मीन्स व्हाट? भाई रिजल्ट निकालना है, असाइनमेंट देना है, चेकिंग करना है, बच्चों को समझे उस लैंग्वेज में समझाना है, और बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट रहना है। ईयर लॉन्ग प्लानिंग, पूरा एकेडमिक कैलेंडर बनना है। कब आपके क्लासेस होंगे, कब आपके टेस्ट होंगे, कब आपके क्विजेस होंगे, कब आपके आविष्कार एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एकदम प्रॉपरली डिफाइंड है। व्हाट एग्जैक्टली आर सपोज टू डू। जैसे मैंने पैराशूट का बताया, मैंने बताया था दिमाग आपका ओपन रखो, आपको सिंपल एक्सेप्ट करते जा रहा है, भैया बस असाइनमेंट दिए क्या, कंप्लीट, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए कंप्लीट, टेस्ट है पूरा पढ़ाई करके जाना है, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको एक ही दिमाग लगाना है, जो जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए फटाफट एक्सेप्ट कैसे करूँ, फटाफट उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ। सेमिनार्स फॉर द बोर्ड मॉडरेटर्स। अरे लिखना कैसे है टेस्ट पेपर में, ऑब्वियसली बोर्ड मॉडरेटर विल बी देयर एंड दे विल गाइड यू। ओके, स्कूल करिकुलम में नेक्स्ट स्टडी मटेरियल, लाइक द कवर पेज, ऑसम, कंटेंट भी ऑसम है, यू लव द कंटेंट। और इंडिया में जितनी बुक्स है इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। यू लव द कंटेंट, और कोई बड़े बड़े नहीं है, बस जितना कंटेंट है टू द पॉइंट है, जितना चाहिए उतना ही है। कोई मुझे बोल रहा है कि सर बोले अपन तो 10th में, अपन 9th में, 10th में हम RD शर्मा बुक, अरे इतनी बड़ी बुक यूज़ कर, क्या ज़रूरत है? ये मैथमेटिक्स बुक्स है, यहाँ पे सिर्फ 1400 क्वेश्चन है, 1400 क्वेश्चन है। उतने ही प्रॉपरली प्रैक्टिस के लिए तो वैसे भी 100 में से 100 मार्क मिल रहे तुमको। मैं क्यों इतना करते बैठूँ? ये अगर 40-50 दिन में कंप्लीट हो रही होंगी मेरी तो।
So concise, precise content is there and interesting content is there. What is the next? आविष्कार. भाई मैं कोई हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पढ़ के नहीं आने वाला, करके ही देखना पड़ता. फिर उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, कहीं रमन साइंस सेंटर है, कहीं राजेंद्र सिंह एक्सप्लोरेटरी हुआ करता था. चलो हमने भी एक छोटा सा वर्जन ला लिया हमारे इसमें अकेडमी. मैं प्रैक्टिकल बच्चे अपने अकेडमी ही करेंगे. सो दैट आविष्कार इज इनिशिएटिव इज देयर. बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया है, प्रैक्टिकल अप्रोच आ गया है. Now it is the era of digitalization. What is the importance of the digital classroom is, जो चीज़ मेरे को 1.5 घंटे में समझती थी, जो चीज़ पढ़ाने के लिए 1.5 घंटा लगता था, वो आज 45 मिनट में कंप्लीट हो जाती पढ़ने वाली डिजिटल क्लासेस के बाद. इतना ईजी है. पहले मुझे अटेंशन देने के लिए पहले 10-15 मिनट अटेंशन रहता था, अभी रैप्ट अटेंशन रहता है पूरे 40 मिनट तक. दैट इज इंटरेस्टिंग. So complete ICAT Foundation program is digitalized now. At least step 1 and step 2. Coming down to the outcome. कोई भी चीज़ का आउटकम तो होना चाहिए. बस ये सब है फीचर. बेनिफिट क्या है? रिजल्ट आते कि नहीं. कोई स्कूल है उसके पास 200 बच्चे हैं, आपके भी स्कूल में 250 वगैरह बच्चे होंगे. कितने बच्चे 90% अनुभव हो जाएंगे? 20, 25, 30, 35. किसी में 300 बच्चे, बोले 50 बच्चे, 90% अनुभव. भाई यहाँ तो सिर्फ पिछले साल 175 बच्चे थे, आधे. एक्सपेक्ट करेंगे तो 25, 90% अनुभव. हाउ मच वी गॉट? 73 students out of 175 students got 90% and above. और इस साल टारगेट कितना भाई? हमारे पास 300 बच्चे हैं तो टारगेट कितना होना चाहिए? 150, 150. कभी देखा है 50% बच्चों को 90% क्रॉस करते हुए? ICAT में देख लोगे. बट दैट इज नॉट द मेन फोकस. मेन फोकस इज दिस कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन. वो तो हो ही रहा है. तो दिस इज द स्टेप, दिस इज द रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर. ओके. अब ये डबल फोटो एक्सपेक्ट कर लेना अगले साल जो आ रहा है 24 में. व्हाट इज द स्टेप 2 नाउ? कमिंग डाउन टू द स्टेप 2. दीज आर द फर्स्ट विल गो फॉर द हाईलाइट्स. सो NCERT सिलेबस, फाउंडेशन, आविष्कार, ई-गणित. E-Ganit is the awesome app and the one of its kind app. हजारों प्रैक्टिस क्वेश्चन, हजारों प्रैक्टिस वीडियोस, हिंट वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियो, कम से कम 60,000 वीडियोस होंगे उसमें. एंड इट इज डेवलप इन बाय द ICAT R&D टीम. ये सब आपको मिलेगा. होमवर्क सबमिशन एंड इवैल्यूएशन, और जो हम बताते हैं वो करते हैं. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Doubt sessions, group counseling, regular testing, quiz, discipline, these are all the parts of the ICAT Foundation program. Coming down to the next. Now we are coming down to the step 2. पहला स्कूल करिकुलम हो गया भाई, अपने 90% अनुभव तो होने ही वाले हैं वो कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स के. ओके. जो अपना दिमाग थोड़ा सा बाहर रखता है, अपने बहुत जगह दिमाग नहीं लगाता है, जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे परफेक्ट कर डालता है. क्योंकि ही और शी अंडरस्टैंड दैट, इनको सब मालूम है, अपने को सिर्फ उनको कंप्लाई करना है. कमिंग डाउन टू द स्टेप 2, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन एंड एक्सलेंस. तो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगे. स्पेशलाइज्ड फाउंडेशन बुक्स लाइक दिस विल बी देयर. इट इज डाइजेस्टेबल विथ एवरी स्टूडेंट, टू एवरी स्टूडेंट, डोंट वरी फॉर दैट. सेकंड, फाउंडेशन डे लेक्चर्स, जो आपके हफ्ते में कम से कम 3 लेक्चर होने वाले. एंड ग्रेजुअली ट्रेनिंग ऑफ द टेक्निक्स जो मैंने बताया, एंड इनकलकेशन ऑफ टेक्निक. जो बच्चा 8वीं में ज्वाइन करता है, जो बच्चा 8वीं में ज्वाइन करता है, 3 साल अगर वो टेक्निक्स इंप्रूव कर रहा है तो वो 11th में उसको क्या लगता है? वो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड.
So this all competitive orientation and excellence is achieved in the step 2. Coming down to the step 3. Okay, let's go for the outcome of the step 2 first. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टेप 1 का आउटकम 90% है ना भाव, स्टेप 2 का आउटकम क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? Obviously cracking the JEE and NEET examination and whatever the other examination, किसी को CA देना है, किसी को SAT देना है, किसी को n number of examination देनी है, वो फाउंडेशन आपका बन गया है. एंड आउटकम इज यू विल बी कॉन्फिडेंट नाउ. You are better prepared to face future competitive examinations like JEE, NEET and other competitive examinations, whatever you want to appear. So it is not only preparing the foundation for JEE and NEET, it is preparing foundation for every other competitive examinations you may be appearing for, maybe rather on GRE or CAT or APSC or something like that. Now coming down to the step 3. अब इसमें से भी कुछ लड़के ऐसे रहेंगे, भैया ये भी हमारा हो गया, यहाँ भी हमने एक्सलेंस ले लिए, चल आ जा भाई. और ये सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम है, क्योंकि अब स्टेप 3 में डालना है तो ऑब्वियसली अब ये 20-25 लोगों की अलग बैच बनानी पड़ेगी. सो नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द स्टेप 3. ओके, सो एवरीबडी from step 1 to step 2 and step 2 and then 40%, 50%, 60%, they are changing their comfort zone and reaching to the step 3. And actually this is the very difficult for us now to accommodate these step 3 people, because 25 students, maybe special batch is supposed to be prepared and train them for high skills examinations like regional Olympiads, national Olympiad, international Olympiads. And I am proud to say that the ICAT is the only institution जिसके लड़के इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई है, बाकी किसी के नहीं. ICAT इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडलिस्ट है, जो आपने देख भी लिया. ICAT इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन कि भैया इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बाद जो टॉप 5 लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं उनको जो इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है, तो वहाँ के भी मेडल विनर्स फिजिक्स के हो या मैथमेटिक्स में 6 मेडल इंडिया के लिए लाए नागपुर के लड़कों ने, और वो तीनों के तीनों ICAT के थे. तो वो लेवल पे ICAT तो पहुँच गया है. अब अपने बच्चे डिस्कम्फर्ट जोन पे वहाँ पहुँच रहे, छोड़ के वहाँ पहुँच रहे. अब ये 20-25 बच्चे स्टूडेंट्स ये नीट टॉप रैंक के लिए, जेई टॉप रैंक्स के लिए या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. सो ग्रेजुअली दे विल बी शिफ्टेड. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दे आर एमिंग फॉर दिस मेजर एग्जामिनेशन, बट एट द सेम टाइम देर इज़ नो स्कूल करिकुलम ट्रेनिंग नाउ. भैया भी रुक जाओ, अब तुम खुद कर लो. नाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट. वो कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई बच्चा 95% है ना बहुत. दे स्टडी इट ऑन देयर ओन एंड दे स्विच ओवर. So they study on their own and they switch over to the advanced training program of theirs. So what exactly is happening? Just to treat student. जैसे जैसे वो डिस्कम्फर्ट जोन छोड़ते जा रहा है, वो एक्सेप्ट करते जा रहा है, वो नए डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली ICAT इज हैविंग द फर्दर चैलेंजेस फॉर हिम और हर. तो हर बच्चे को उसका जस्टिस मिल रहा है. भैया मैं ये कंफर्ट जोन में, मेरे को पूरी सर्विसेज ICAT की तरफ से मिल रही है. ऐसा नहीं कि मेरे को एकदम ज़्यादा हाई फाई कोर्स में डाल दिया गया या तो मेरे को ऐसे लो कोर्स में डाल दिया जिसमें मेरे टैलेंट को जस्टिस ही नहीं है. सो दिस इज हाउ द ICAT प्रिपेयर्स एंड आउटकम इज, एंड वी ऑलरेडी अप्रूव्ड दैट आउटकम. JEE NEET top scorers, international and national Olympiad qualifiers are all achieved at ICAT, and continuously we are doing that. We are the highest KVPI qualifier. We are the highest NACP qualifier. We are the highest NACP qualifier. We are the highest astronomy Olympiad qualifiers. We are the highest national physics, national chemistry and national mathematics Olympiad qualifier. We are the only people who won the international medals for India. And top 100 ranks and all, they are the cakewalks. What exactly the importance of the Olympiads are?
दे आर डिफिकल्ट एग्जामिनेशन देन द जेई एडवांस और नीट। नीट तो वेरी सिंपल है उनके लिए, तो नीट तो अपनी जेई मेन से भी सिंपल है। सो देन दिस एग्जामिनेशन जेई एडवांस एंड नीट, इट इज केक वॉक फॉर देम फॉर टॉप रैंक्स। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द questions. So I am asking you some of the questions, just listen to them carefully and answer that. Okay, so assignments and homework have been traditional ways in the earlier school in India and now in USA also. लेकिन पहले जब हम पढ़ते थे तो घर में सॉल्व करने के लिए होमवर्क मिलता था, अपने स्कूल की तरफ से हमको होमवर्क करके जाना पड़ता था। अगर हमने होमवर्क नहीं किया तो डांट नहीं मिलती थी, उनके पास एक छड़ी रहती थी, बस हाथ खड़े करो पट के साथ मारते थे। तो हर बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाता था और वो ट्रेडिशन अभी के स्कूलिंग सिस्टम में ख़त्म हो गई, जो अच्छी ट्रेडिशन चल रहे थे। अब क्या है कि ये अगर असाइनमेंट्स और होमवर्क करना है तो केस वन इज कि भाई डिसकंटिन्यू कर दो, बच्चे अपने आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबल नाउ। और केस टू, रेगुलर असाइनमेंट एंड होमवर्क सबमिशन चेकिंग शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा है? केस वन अच्छा है कि केस टू? किससे ये अचीव होगा? असाइनमेंट और होमवर्क बच्चे रेगुलरली कब करेंगे? चेक नहीं किया तो या चेक किया तो? टेल मी द आंसर, केस वन और केस टू? ऑब्वियसली केस टू, राइट? लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में मैं आपका पूरा बेसिक क्लियर कर रहा हूं। ओके, सपोज आई गिव असाइड, अच्छा आपका बेसिक क्लियर भी होगा तो भी एक 45 हो जाएगा, मेरा बेसिक बराबर है। ओके, सपोज आई गिव असाइनमेंट रेगुलरली, विच केस हैज मोर चांस ऑफ गेटिंग टास्क अकम्प्लिश्ड? केस वन, जस्ट आस्किंग टू डू इट, कर लेना। और रेगुलर चेकिंग ऑफ असाइनमेंट बाय टीचर्स, मॉनिटरिंग बाय एकेडमिक हेड्स एंड रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन टू द पेरेंट। और हम भी देखेंगे कि भैया ये सब जगह चेकिंग बराबर चल रही है कि नहीं हर सेंटर लेवल पे। ये मॉनिटरिंग होने के बाद आपके असाइनमेंट्स इफेक्टिव होंगे, होमवर्क्स इफेक्टिव होंगे, या सिर्फ बताने से होंगे? कर लेना बेटा, मैंने अपना काम कर दिया, असाइनमेंट दे दिया, तू अब कर ले, होने वाला है क्या? तो वेदर केस वन इज मोर इफेक्टिव और केस टू? Perfect. Case 2, right? Let's go for the third question. What is personal attention? Everybody says personal attention, personal attention, personal attention. ये तो हर ब्रोशर में दिखेगा। क्या है पर्सनल अटेंशन? चलो मैं बोलता हूँ, कोई एक केस वन है, बेटा डोंट वरी, यू विल क्रैक जेई एग्जामिनेशन, यू विल क्रैक नीट एग्जामिनेशन, यू विल बी टॉपर इन द स्कूल एंड दिस एंड दैट, डोंट वरी, आई एम हियर। और मेरे को तेरा नाम भी मालूम है, सारंग, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। उससे होता क्या? और केस टू, भाई डोंट वरी वगैरह जानते, भाई तेरे को असाइनमेंट दिए थे वो कंप्लीट किए क्या? दिखाओ। मॉनिटरिंग, चेकिंग ऑफ द असाइनमेंट्स, इज इट हैपनिंग? आपने क्लास नोट कैसे लिए? इज इट हैपनिंग कि आप देख रहे हैं? अगर फैकल्टी देख रही है, रेगुलरली देख रही है, तो दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट इज पर्सनल अटेंशन। और ये पर्सनल अटेंशन, बेटा डोंट वरी, यू विल डू वेल। So whether case 1 or case 2, I think we are getting the basics, right? Get the third, and this is all I can implement, all the case 2s I can implement. That's why I'm telling you. Which is better? Question 4. First case, reading about experiments and understand them. भाई मैंने पढ़ लिया ना, क्या को इतना करते बैठने का? और परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एज द पार्ट ऑफ आविष्कार इनिशिएटिव एकेड। देखो पढ़ लिया ना तो भूल भी जाओगे, और कर लिया ना तो समझ लेना भाई ज़िंदगी भर याद रखोगे। आपको भी बैक ऑफ द माइंड मालूम है ऐसा ही है, सिर्फ आपको मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है मेरे पास, जाता कहाँ टाइम? सुबह से लेकर शाम तक का टाइम लेकर देखो कितने अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो भैया, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। बट आई गेट के कुरिकुलम में तो इट इज द पार्ट ऑफ द कुरिकुलम, तुमको करना ही है, हो जाता अपने आप। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which approach is better to develop expertise in competitive question? केस 1 10वीं के बाद देखेंगे, स्किल सेट विल सेट बाद में देखेंगे. Why to take unnecessary burden now? Or case 2, get exposed to the quality questions today itself. 10वीं के बाद तो मैं एक्सपर्ट रहूँगा भाई ऐसे क्वेश्चंस में डेवलप करना. What do you think? Which is the better way to prepare for the competitive examinations? Case 1 or case 2? This is how the ICAT prepares. कुछ समझ में आ रहा है वर्ड प्रोटोकॉल? व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. माय ब्रदर इन लॉ सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस. कोई डेंटिस्ट के आ गया होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, हेपेटाइटिस हो गया. जस्ट उसको पूछा कि बस जब मिलने गए और पता चला उसको हेपेटाइटिस हुआ है. मैंने बताया नहीं अभी तक. बोले सारंग, बोले मैं डॉक्टर से ले रहा हूँ. और आजकल गूगल भी करते हैं अपन, तो वो भी करता था. मैं बोला भाई कौन सा डॉक्टर है? ये पहले ही जानलेवा बीमारी है और तू एकदम कोई लोकल डॉक्टर? तो बोले इट्स फाइन. गुड. मैंने सीधा उसके सामने ही अपने जमाई को फ़ोन किया बॉम्बे में, भाई ये हेपेटाइटिस हो गया, क्या करना है? तो उसने बोला सीधा अपने पास डॉक्टर श्रीकांत मोकियार है, बोले सीधा उनके फ़ोन कर बात कर. मैंने दूसरा फ़ोन किया डॉक्टर श्रीकांत मोकियार को, सर बोले सीधा लेके आ, एडमिट कर. ये का एडामेंट था, लेकिन अपन तो ज़्यादा एडामेंट है. मैं बोला भैया कुछ नहीं, अपन जा रहे हैं. सुनने की आदत डाल, जैसे आप लोगों को बताएंगे ना पूरे पहले से, जैसा बता वैसा कर लो. दे आर एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट. सीधा उठाया उसको, ओके एडमिट किया. रात की बात थी, सुबह गए, पूरे टेस्ट किए, पहले डॉक्टर को मिले. तो उन्होंने पूरा समझाया कि भैया इसको ये हो गया है, ये काउंट्स है, ये हमारी पहली स्टेप रहेंगी, ये हमारी दूसरी स्टेप रहेंगी, और ये तीसरी स्टेप में ये रिकवर हो जाएगा. थोड़ी देर में उसके सीनियर डॉक्टर को बुलाया हुआ है कि भैया इनको मिलना है. तो उनको मिले जाके, उन्होंने भी सेम चीज़ें बताई. ये काउंट है हमारी, ये पहली स्टेप रहेंगी, ये दूसरी स्टेप रहेंगी, ये तीसरी स्टेप रहेंगी. और जो पहले के प्रोटोकॉल पहले का डॉक्टर जो फॉलो करे तो पूरा गलत था. अरे बाप रे, मतलब बच गया भाई. अब दोनों डॉक्टर ने सेम बताया, यानी प्रोटोकॉल फंटास्टिक. अब जब मैं निकल रहा था, एडमिटेड तो था बंदा, तो मेरे को अंकल का कॉल आया. ही इज़ द बिजीएस्ट डॉक्टर, इसलिए बोला क्यों डिस्टर्ब करना अंकल को. तो अंकल ने बोला चल आजा भैया. हाँ सारंग क्या हुआ? जैसे ये हुआ. उसने पूरे रिपोर्ट वगैरह देखे. ये बोले सिंपल है, ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 3 स्टेप में होंगी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप. अगेन द सेम ट्रीटमेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोटोकॉल. भैया तीनों डॉक्टर ने सेम चीज बताई. भैया कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरा पेशेंट तो ठीक होने वाला है. दिस इज द प्रोटोकॉल. ये तो ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अगर हम 2004 से है, जब पैदा भी नहीं होंगे, तो वी आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन द प्रोटोकॉल्स. एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोटोकॉल इज? वी आर हैविंग द क्लियर प्रोटोकॉल स्टॉपिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. वैसे फॉलो करो, वह हो ही जाएंगे टॉपर बस, और करा लेंगे. ऐसा नहीं कि भाई तुमको बताया हो गया, करवा भी लेते हैं. सेकंड इज द जेई नीट क्वालिफिकेशन. भैया मैं अगर टारगेट कर रहा हूँ इस साल 700 से ज़्यादा लड़के जेई में आज तक नागपुर में हुए नहीं, मैं क्वालिफाई करने की टारगेट रख रहा हूँ, तो फिर मैंने प्रोटोकॉल तो इस्टेब्लिश किए होंगे ना, और वो एग्जीक्यूट तो कराऊंगा ना मैं. फिर नीट हो या जेई हो. टॉप स्कोर, मेरे को मालूम है टॉप स्कोर कैसे लाना. कभी हमारे इसमें ऐसा होता है कि कभी हमारे पास टॉप बच्चे आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन बॉस लाने में तो एक्सपर्ट है. सिर्फ कभी रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा, कभी थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आना तो है ही. अभी तो हर साल टॉप आएगा. पिछले 5-6 सालों से भी टॉप आ रहा था, 1 साल गैप पड़ा होगा, अभी हर साल आएगा. तो दिस टॉप स्कोर्स
वी आर हैविंग द क्रिएट प्रोटोकॉल, ऑल इंडिया टॉप रैंक, टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 आएगा ही। कोविड से निकलने के बाद भी 6 लड़के पहले 1100 में लाए। कैसे लाए भैया? तुमको तो पहले कोविड से बाद आए तो पहले 1 साल तो वैसे ही चला गया था। 300 में से 150 के ऊपर स्कोर नहीं था, वो भी जेईई मेन में, एडवांस तो छोड़ दो। नीट के स्कोर 400 450 पे अटक गए थे, तो टॉपर 64 और 663 पे आ गया। 100% फिजिक्स में ले लिया नीट के बच्चे ने। कुछ तो होगा ना एकेडमी में, सिर्फ बातें नहीं करते। रिजल्ट छापना तो बहुत ईजी है, हर किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 आए तो हर किसी को एडवर्टाइजमेंट में दिखता है। भैया खुद ने लाना तो डिफिकल्ट है ना, सस्टेन क्यों है एकेडमी खुद के रिजल्ट से। फिर प्रोटोकॉल तीसरा, नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड क्वालिफिकेशन का। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एट आईकैट। तुमको सिर्फ वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अपना दिमाग मत लगाओ। बहुत लोगों के पास रहता है, भले ही उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता, लेकिन इधर से सुनते, उधर से सुनते, उधर से सुनते। भैया जैसे गूगल करके डॉक्टर के केबिन में बैठ गए, सर ये गूगल ऐसा बता रहा, तो डॉक्टर कह लो गेट आउट। बहुत बार तो मुंबई के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स के बाहर केबिन में, अगर आपने गूगल पढ़ के आने वाला है तो भैया एंट्री मत करो केबिन में। हम भी यही बोलते भैया वी आर द एक्सपर्ट्स। समझता कुछ? बस सर सॉल्विंग कर रहे तो सोल्यूशन क्यों नहीं देते? भैया सोल्यूशन देंगे तो वो बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ेगा? इतना सिंपल बेसिक तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमको सिखाने चले? नहीं सीखते हम। वी हैव द क्लियर कट प्रोटोकॉल्स और वही प्रोटोकॉल फॉलो होते। Now ICAT programs, classroom foundation training programs, across all the 6 centers of ICAT, head office, हनुमान नगर, सदर, अमरावती, यवतमाल एंड चंद्रपुर, हर जगह भी फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ऑसम रिजल्ट निकालने विदर्भ के। ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक्स, ऑल इंडिया 100 रैंक्स, मैक्सिमम लड़के क्वालिफाइंग नीट 600 एंड अबव एंड जेईई मेन। How it is going to happen? फाउंडेशन प्रोग्राम पूरे 6 सेंटर्स में शुरू हो रहा है। कोई ज़्यादा लड़के नहीं चाहिए हमको, लिमिटेड बच्चे चाहिए, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। एडमिशन क्राइटेरिया, entrance examination, and if you are getting 70% and above, go on the direct admission, and if you want the more scholarship, try our CPA test over there. Okay, and offer scholarship offer। अभी आपको यहाँ बुलाया गया है लीप वर्कशॉप के परसेंटेज के हिसाब से। ऑलरेडी तुम दे चुके हो एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे आपको एक ऑफर लेटर दिया गया है। किसी को 30% स्कॉलरशिप होंगी, 20% स्कॉलरशिप होंगी, किसी को 10% स्कॉलरशिप होंगी। ओके, ऑफर लेटर हर एक को दिया गया है। एडमिशन डेडलाइन है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक आपको एडमिशन आपकी ले लेनी है। बाद में ये ऑफर लेटर वैलिड नहीं रहेगा, बोलना भी नहीं भैया ऑफर लेटर वैलिड है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।